Very good morning, dear students. As you know, we are studying the types of chemical reactions, and in which we have already covered the two types, that is combination reactions, and the second one, decomposition reactions. We have already studied about these two types of reactions, and in decomposition reaction, we have already covered the types of decomposition, that is thermal decomposition, electrolytic decomposition. Clear? Similarly, photolytic decomposition. We have studied all about these three types of decomposition reactions. So today we will discuss the next type of chemical reaction, that is displacement reaction. So the displacement reactions, as the name suggests, one particular chemical species during the course of the reaction will displaces the another type of species from the reaction mixture. For example, in this case, if we put iron fillings in copper sulfate solution, then iron will displace copper from its solution to form ferrous sulfate and copper. The displacement reactions basically takes place between two different types of species, chemical substances having different reactivities. Okay, the particular substance which is more reactive will displaces the reactive substance, the less reactive substance from its solution, from the chemical mixture. For example, in this case, iron is more reactive. Iron is more reactive than copper, that is than copper. So therefore, iron displaces copper from aqueous solution of copper sulfate, and it will form ferrous sulfate. Okay, copper will get liberated. Such type of reactions in which one particular metal especially displaces the another type of metal from its aqueous solution or from the reaction mixture, those type of reactions are known as displacement reactions. This is the activity in which you have taken the ferrous sulfate solution in the test tube, and these are iron nails, that is iron. And after some time, you will notice that blue color of the copper sulfate solution will get disappear, just because of the reaction that takes place in the process. रिएक्शन की वजह से जो आयरन नेल्स हैं, आयरन एक तरह से डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्रोड जिसको हम बोलते हैं क्रोजन, वो क्रोड होकर डिसॉल्व कर जाएगा सॉल्यूशन में, और वहां से हमारे पास फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगी और कॉपर जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है. तो आयरन नेल्स बिकम्स ब्राउनिश इन कलर by deposition of copper, and blue color of copper sulfate changes to dirty green color due to formation of ferrous sulfate. Okay, beta. So therefore, this particular type of reaction is a displacement reaction. Similarly, another example you can write when zinc is dipped in copper sulfate solution. When you put zinc metal or in the form of granules, small pieces, when you put zinc granules in copper sulfate solution, there will be formation of zinc sulfate and copper will get isolated. In this case, zinc is more reactive than copper. So displacement reaction simply क्या हुई फिर? Displacement reaction simply ये हुई कि जहाँ पे एक particular highly reactive species जो है वो less reactive species को उसके solution में से क्या कर देगा? Displace कर देगा, ठीक है, क्लियर. इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस. इसी तरह से सेकंड आती है डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे तो एक पर्टिकुलर मेटल दूसरी मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करे, वो होगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट.
मतलब एक ही मेटल डिस्प्लेस हो रही है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों की दोनों, जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में दो स्पीशीज होंगे, दोनों के दोनों मेटालिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड दो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ aqueous solution, sodium sulfate and barium chloride. And whenever you mix sodium sulfate solution in barium chloride solution, then there is a mutual displacement will take place. The sodium will displaces barium from its solution, and the resultant products that gets obtained during the course of the reaction are barium sulfate and sodium chloride. बेसो से कहने का ये है कि सोडियम ने बेरियम को और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से पहले सोडियम सल्फेट था, अब क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। और जो क्लोराइड था, जैसे बेरियम क्लोराइड था, वो अब क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। इन रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होती है, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड्स, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। ठीक है बेटा जी, इसलिए इनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ reactions. Such reactions in which there exists mutual exchange of the ions between the two types of compounds. Clear? Those type of reactions are known as double displacement reactions. Good. Now, the next one are oxidation and reduction reactions. Oxidation and reduction reactions. These are very, very important. First of all, it is better to understand the term oxidation and reduction. So we have multiple number of definitions for oxidation and reduction. In terms of classical concept, simply, that is simplest, simplest definition of oxidation and reduction is oxidation means gain of oxygen and reduction means gain of hydrogen. Okay. ऑक्सीडेशन सिंपली क्या है, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द डेफिनेशन, दैट इज क्लासिकल डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। जहां पे ऑक्सीजन ऐड अप हो रही है उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और सेकेंडली द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। ठीक है, या तो दोनों साइमल्टेनियस भी हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रही है लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी क्लासिकली आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हो, द प्रोसेस इन विच आइदर एडिशन ऑफ और गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके बेटा, नाउ दीज आर द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देयर carbon plus oxygen, it is oxidation, that is burning process or combustion process, you can say. Gain of oxygen takes place, that's why it is oxidation reaction. Copper when placed in air and under certain temperature conditions, it forms copper oxide, green layer over the copper surface. Clear? Similarly here, loss of hydrogen takes place. यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस हो रहा है। सो ये रिएक्शंस क्या हैं, दीज रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बेटा इस तरह से आप इनको डिफाइन करो। और रिडक्शन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, रिडक्शन रिएक्शन सिंपली दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। मतलब रिडक्शन रिएक्शन टोटली रिवर्स होती है बेटा ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, उन पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस को बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ओके बेटा। तो इन ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, ये जब साइमल्टेनियसली किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में टेक्स प्लेस करती हैं तो उनको बेटा बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस, ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं बेटा, जहां पे
दोनों की दोनों, दैट इज कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही रिएक्शन में, जैसे आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख रहे हो, ये वाली एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है वहां पे ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। यहाँ से ये देख रहे हो ना, कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से जब रिएक्शन हुई तो अकेला कॉपर में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या होगी, रिडक्शन होगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरे केस में क्या, हाइड्रोजन है, यहाँ दूसरी तरफ क्या हो गया, H2 मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से मीन्स द रिएक्शंस इन विच both oxidation and reduction takes place simultaneously, they are known as, क्या बोलते हैं इनको, they are known as redox reactions बोला जाता है बेटा। These type of reactions are known as redox reactions, ठीक है। ये जितने भी हमने यहाँ पे एग्जांपल किए हैं, ये सारे के सारे क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। जो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बेटा, ठीक है। So such type of reaction in which both the oxidation and reduction reaction are taking place simultaneously, they are called oxidation, that is redox reactions, in which oxidation is the process in which addition of oxygen and removal of hydrogen takes place, or removal of hydrogen takes place, and reduction is the process in which addition of hydrogen takes place or removal of oxygen takes place. So these are the basic types of chemical reactions. The another definition of oxidation and reduction reactions are based upon the electronic concepts. There we go. These definitions you can write as oxidation. According to electronic concept, oxidation is the process which involves the loss of electrons from a particular species. Means to say, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली बेटा ऑक्सीडेशन ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, मींस फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस टेक्स प्लेस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्लियर बेटो? एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर दोस in which gain of electrons takes place, in which a particular species gain electrons to form anionic species. So this is the electronic concept of oxidation and reduction, and this concept will be studied in higher classes. Okay beta, but you can learn these two concepts, like electronic concepts and classical concept of oxidation reduction in 10th standard also, because वहाँ यहाँ पे हमें कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के से रिलेटेड भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाता है, और क्लासिकल कंसेप्ट तो है ही है, ये तो मेन आपका एनसीईआरटी में सिलेबस है ही है सारा। ठीक है बेटा, ये है आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल reactions. Okay dear. So better from the NCERT portion, you can also take the help of NCERT book for studying the displacement and double displacement and oxidation and reduction reactions like this. For example, this activity 1.9, this we already studied about if we suspend the iron nails in the solution of copper sulfate, then the blue color of copper sulfate solution gets disappeared. Okay, this is the activity which will you perform in the lab. Okay, so this is the complete activity. Iron nail taken out from the copper sulfate solution becomes a brownish in color. Okay beta, so this is the how the displacement type of reaction taking place actually. So such type of questions, that why does iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? ये क्वेश्चन कि जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश क्यों हो जाती है और ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का वो फेड क्यों हो जाता है, तो किस वजह से? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट, जो अभी आपने की है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, आयरन जो है वो डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्पीशीज डिस्प्लेस हुआ है
इसलिए इसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अदर रिएक्शन आप एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की अभी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा अदर जैसे लेड प्लस कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन जो होता है, इसमें लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों रिएक्शन में याद रखना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हाईली एक्टिव एलिमेंट होगा वो सॉल्यूशन में से लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिकल सा केस है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो खुद क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और दूसरे वाला वहां से रिमूव आउट हो जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। और सिमिलरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्टिविटी है, यहाँ पे आपने क्या किया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को आपस में मिलाया, वहां से क्या बन गया आपके पास, वहां से जो सल्फेट था दैट इज सोडियम सल्फेट था, अब क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। जो बेरियम था वो सोडियम बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो स्पीशीज आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है दो स्पीशीज की, तो इसलिए बोला जाता है इनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे जो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा वो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। इसलिए ये टाइप ऑफ रिएक्शन, इस टाइप ऑफ रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट्स भी बनते हैं आपके, इनको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्या बोला जाता है बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि वन ऑफ द जो सब्सटेंस होता है वो एज अ प्रेसिपिटेट अलग हो जाता है। So any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction। तो यहाँ पे ये आपके प्रेसिपिटेट बनता है। बेरियम सल्फेट जो है वो पीपीटी दैट इज प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है इन द रिएक्शन मिक्सचर में। प्रेसिपिटेट जानते हो बेटा, प्रेसिपिटेट मींस टू से पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स एग्रीगेट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम मिल्क में लेमन जूस डालते हैं तो मिल्क डिसोशिएट कर जाता है ना इनटू सिंपलर पार्ट दैट इज फैट पार्टिकल, अलग हो जाते हैं वो वाले, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये सारी ठीक है बेटा जी, इस तरह से आप इसको डिस्कस करोगे। सिमिलरली इसी तरह से आगे आप इनको एक्टिविटीज वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लेड आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में आपने ऐड किया तो वहां पे क्या हुआ, लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा आपके पास ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। तो इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, इट इज आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा हमने ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी आपको करवाई। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन जैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये सारी की सारी रिएक्शन की एग्जांपल्स आप लोगों ने कर लेनी, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में आपको स्पेशली कौन सी है, क्लासिकल कंसेप्ट की ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों ने एग्जांपल्स करनी, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन बेटा इनको बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या दोगे, the reactions in which both oxidation and reduction take place simultaneously, they are known as redox reaction। यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दी हुई है, सिर्फ क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेफिनेशंस को प्रोवाइड करवाया गया। एक अनदर होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होता है, उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया ही है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस ऑक्सीडाइज होना। उसमें क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर स्पीशी होता है वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो फॉर्म कैटायन फॉर्मेशन का पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाते हैं। और रिडक्शन केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। जैसे NaCl जब फॉर्मेशन होती है ना बेटा, तो वहां पे NaCl के केस में Na जो सोडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na पॉजिटिव में बन जाता है। Na सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनता है, सोडियम कैटायन बन जाएगा Na पॉजिटिव। और दूसरी तरफ जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। और उसके बाद फिर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, NaCl फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाती है। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करनी है क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, दैट इज गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू आपने दोनों को स्टडी करना है अच्छी तरह से। ठीक है बेटा जी। बाकी ये आपकी एक्टिविटी आ जाएगी फिर से, जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया डिजलिंग फ्लेम इन एयर, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ही होती है बेटा, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह से अदर कई बेटा केमिकल रिएक्शन, कई क्या मैं मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन जो डे टू डे लाइफ में आप लोग ऑब्जर्व करते हो, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बेटा मैक्सिमम होती है, रेडॉक्स रिएक्शन जिनको बोलते हैं वो मैक्सिमम होती है, जैसे डेंसिटी ऑफ फूड। ठीक है, आपने आजकल तो आपको पता है कि गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, आप जो हम वेजिटेबल्स वगैरह कुकिंग करते हैं या इवन चपाती वगैरह बनाते हैं, हम उनको ज्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते नॉर्मली, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो एक फाउल स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, गंदी सी वहां से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो जो आपकी स्पेशली पल्सेस वगैरह जो हम बनाते हैं, दालें वगैरह जो बनाई होती हैं, अगर वो कहीं बाहर रह जाए 3-4 घंटे गर्मियों के दिनों में, तो उसमें से जो फाउल स्मेल, दैट इज एक गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो वो किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस कर जाती है, जिसकी वजह से वो, जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड, ये चीजें होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होती रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड के दौरान ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में आप लोग ऑब्जर्व करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोजन हो गई। ठीक है, क्रोजन, रेंसिडिटी, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आप लोग नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बेटा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की ही एग्जांपल होती है। तो क्रोजन क्या होता है, क्रोजन सिंपली क्या है, क्रोजन सिंपली ईटिंग अप या ईटिंग अवे ऑफ द मेटालिक सरफेसेस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दैट इज उसको क्रोजन बोल देते हैं। और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते ही हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं उसको, तो क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन होती है। कलर ऑफ द कोटिंग जो होती है कॉपर एंड सिल्वर, वो भी चेंज हो जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो जब मेटल को अटैक होता है सब्सटेंसेस अराउंड इट, जैसे मॉइस्चर है, एसिड्स है, ठीक है, एयर, मॉइस्चर, लाइट, तीनों चीजें जब एक मेटल सरफेस के ऊपर एक्ट करती हैं, तो मेटल सरफेस वहां से करोड होना शुरू हो जाता है, मतलब स्लोली डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ईटन अप ऑफ मेटालिक सरफेसेस। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोजन। और ये जो ब्लैक कोटिंग ऊपर बनती है ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये क्रोजन की ही अदर एग्जांपल्स हैं बेटा, यहाँ पे क्रोजन ही टेक्स प्लेस हो रही है। ये वो चीजें हैं बेटू जो आप लोग नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इनको देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, वहाँ पे जो टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, क्रोजन के क्या इफेक्ट रहते हैं, जितने भी आपके मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कार बॉडीज होगी, ब्रिजेस हो गए, आयरन रेलिंग्स हो गई, शिप्स हो गए, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेड अप फ्रॉम मेटल्स, स्पेशली जहाँ पे आयरन वगैरह प्रेजेंट होता है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज किस वजह से हो रहा है, क्रोजन की वजह से। और क्रोजन एक्चुअली क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस इन डे टू डे लाइफ। ठीक है बेटा, तो लार्ज नंबर ऑफ सच रिएक्शंस हम लोग काउंटर करते हैं डे टू डे लाइफ में, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। अब इसी के लिए क्रोजन वगैरह से डिफरेंट स्पीशीज को बचाने के लिए हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड ये सारी की सारी हम घरों में देखते हो आप लोग की, जब जो लोहे के हमारे ग्रिल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग पेंट वगैरह करते हैं, गेट वगैरह होते हैं उनको पेंट करना जरूरी होता है, अगर नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, करोड हो जाएगा और वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। गलना सड़ना इन द सेंस कि वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, वीक हो जाता है, और एक टाइम ऐसे आता है जो कि वो टूटना शुरू हो जाता है, टूट जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे ग्रीसिंग करते हैं, पेंट कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा ऑयलिंग की जाती है। ठीक है, और एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी होती है। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि अदर मेटल सरफेस की कोटिंग कर दी जाती है ऑन द एक्टिव मेटल सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये आपकी क्या रहता है, क्रोजन कहलाता है बेटा ये। तो यहाँ से फिलहाल आप लोगों ने इसको
जनरल सी इनकी स्टडी थोड़ी सी कर लेनी है आपने रिगार्डिंग द प्रोज। ठीक है बेटू। इसके अलावा रेंसिडिटी के बारे में मैंने आपको जैसे बताया ये, तो रेंसिडिटी का भी वही केस है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है। द सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, दैट इज इनको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है, जो ऐड किए जाते हैं टू protect the food from to get rancid. ठीक है, to foods containing fat and oil. So keeping food in airtight container helps to slow down oxidation. अगर हम डिफरेंट फूड स्टफ्स को अगर एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स, फ्लश बैग भी वहाँ पे गैस फ्लश की जाती है। ठीक है, उसमें पैकेट में गैस होती है, तो विच गैस सच एज कैसी नाइट्रोजन वगैरह होती है जो प्रिवेंट करती है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। इस तरह से ये आपके पास क्या है, रेंसिडिटी ऑफ फूड, जिसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द फूड containing fat and oil food particles, that is known as the process of food decomposition is known as the rancidity। ठीक है, degradation of food stuff जिसको आप बोलते हैं। सो ये आपके बेटा डिफरेंट कंसेप्ट हैं जो चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आते हैं। ठीक है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, यही आपका चैप्टर। तो अभी के लिए फिलहाल आपका काम क्या है, क्वेश्चन वगैरह ये थोड़े बहुत बाद में देखेंगे। पहले आपने इस पूरे को, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को, क्रोजन को, रेंसिडिटी को एक बार डिटेल में स्टडी करना है और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है, राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपको एक असाइनमेंट भेजी हुई है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस की, ठीक, वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। नहीं होगी तो वो मुझे बता देना है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज योर बेटा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। एक बार आप लोगों ने इसको एनसीईआरटी बुक में से डिटेल में स्टडी कर लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं, और ये एनसीईआरटी में ही जो यहाँ पे ये क्वेश्चन है इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटो, टिल देन ओके।